Namaskar everyone. Welcome to the lecture series on theory of errors. This is part 1 and I Rachna Upadhyay, lecturer, Lakshmi Institute of Technology, welcome you all. So today we are moving on with a new topic, theory of errors. So in this, let us see what would be the contents we would be going through. So these are the contents, and apart from this, wherever the numericals come, we'll see those also. So today we are going to see the some basic definitions, different kinds of errors, and law of accidental error. So generally there are three different kinds of error. One is mistakes, second one is systematic errors, and the third one is accidental errors. Now mistakes are generally those errors which arise from our carelessness, or let us say that the mistakes are the errors which may arise from poor judgment, inexperience, inattention, carelessness और confusion in the mind of observer. मतलब अगर हम सर्वे कर रहे और हमारी अपनी पर्सनल मिस्टेक्स की वजह से हमारा पर्सनल कन्फ्यूजन हो या हमें कोई जजमेंट लेना नहीं आता हो, सो दैट आर कॉल्ड मिस्टेक्स. एंड अगर ये मिस्टेक्स डिटेक्ट नहीं हुई सही टाइम पे तो इसका इफ़ेक्ट क्यूमुलेटिव होके बहुत बड़ा हो जाता है एंड में. सो every value which is to be recorded in the field, that must be checked by some independent field observation. मतलब हमने जो वैल्यूज़ चेक किए हैं वो सारी वैल्यूज़ वापस से रीचेक होनी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट मिस्टेक्स इज़ ऑल अबाउट. सो दिस इज़ टोटली ड्यू टू आवर मिस्टेक. देन सिस्टमैटिक एरर्स. So these are the errors that under the same conditions they will be always be of same size and sign. मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा. The systematic error follows some definite mathematical or physical law and the correction can be determined and applied. So these errors have always some mathematical relationship between them. तो अगर error पता भी करना है then also we have to apply some mathematical law only. Now these errors are of constant character and are regarded as positive or negative. Accordingly they make the result either too great or too small, and hence their effect is क्यूमुलेटिव. उनका अफेक्ट हमेशा क्यूमुलेटिव होगा. सो इफ़ द सिस्टमेटिक एरर्स अनडिटेक्टेड रहे, अगर हमें पता नहीं चला, सो दे टू हैव अ वेरी सीरियस इफेक्ट ऑन आवर एंटायर वर्क. सो टू अवॉइड दैट what shall we do? That the very first thing is that all the equipments, those are designed and used so that whenever possible systematic errors come they will be automatically eliminated. मतलब अगर equipments ही हम ऐसे डिज़ाइन करें कि systematic errors जो है वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो सकते हैं, और अगर ऑटोमेटिक एलिमिनेट ना भी हो देन ऑल्सो द रिलेशनशिप टू द कंडीशंस वो डिटरमाइन हम इजीली कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम कोई लेवलिंग कर रहे हैं तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट को पहले एडजस्ट करते हैं. कैसे कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल ही रहे, बबल को सेंटर में करके. उसके बाद वॉट एवर द हॉरिजॉन्टल लेंथ्स हम लोग बैक साइड और फोर साइड के लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से, वो नज़दीक नज़दीक लेते हैं. तो दिस आर व्हाट, दिस आर टू अवॉइड अवर एरर्स. दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स
ऐसे डिज़ाइन नहीं होते हैं या फिर सिस्टमेटिक एरर्स एलिमिनेट नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली, तो हम मैथमेटिकल लॉ लगाते हैं. देन नेक्स्ट इज़ आवर एक्सीडेंटल एरर्स. एक्सीडेंटल एरर्स आर जनरली दोज एरर्स जो हमारी मिस्टेक्स और सिस्टमेटिक एरर्स को एलिमिनेट करने के बाद भी रहती है, एंड दिस आर कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ द रीजन्स which are beyond our ability, means we can't control these errors, so they tend sometimes in one direction and sometimes in other, so they are equally likely to make the apparent result either too large or too small. So an accidental error ऑफ अ सिंगल डिटर्मिनेशन मतलब कोई भी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन का, दैट इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स. विच टू थिंग्स? दैट इज ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. नाउ विल सी सम डेफिनेशंस, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इज ट्रू वैल्यू. एंड सेकेंड वन इज द डिटर्मिनेशन दैट इट इज फ्री फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स. नाउ एक्सीडेंटल एरर्स आर व्हाट? वो हमारी प्रेसिजन की लिमिट को बताती है. सो दोज रिप्रेजेंट द लिमिट ऑफ आवर प्रेसिजन, कि हम कितनी प्रिसाइसली कोई भी वैल्यू को, कोई भी ऑब्जर्वेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ दिस एक्सीडेंटल एरर्स दे ओबे द लॉ ऑफ चांस एंड देयरफॉर दे मस्ट बी हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी. So in this theory of errors, we will deal with this accidental errors and we'll see how to eliminate and how to account for it. So इसमें हम accidental errors की ही बात करेंगे. So first let us see some basic definitions. So first is independent quantity. अभी independent quantity मतलब क्या? Actually there are two types of quantities. जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं वो या तो इंडिपेंडेंट होता है या तो कंडीशनड होता है, और एल्स डिपेंडेंट रहता है. सो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज द वन हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्वांटिटीज. मतलब एक कोई ऑब्जर्वेशन आपने लिया तो उसका रिलेशन दूसरी क्वांटिटी के साथ कुछ भी नहीं है, और अगर दूसरी क्वांटिटीज़ में कोई चेंज आई तो आपकी ये वाली क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. जैसे कि हम लोग लेवलिंग के हाइट्स लेते हैं विद रेफरेंस टू डिफरेंट बेंचमार्क्स. बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं हमारे पास, उसके रिस्पेक्ट में हम रेड्यूस लेवल लेते हैं, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे. क्यों? क्योंकि एक ही बेंचमार्क नहीं है जिससे आप रेड्यूस लेवल ले रहे हो, बहुत सारे बेंचमार्क हैं. देन नेक्स्ट इज अवर कंडीशनड क्वांटिटी. सो कंडीशन क्वांटिटी इज व्हाट? इट इज़ वन whose value is dependent upon the values of one or more quantities. So अगर दूसरी कोई क्वांटिटी में चेंज हुआ, दूसरी कोई ऑब्जर्वेशन में चेंज हुआ, तो आपके ये वाले ऑब्जर्वेशन में भी चेंज हो जाएगा. जैसे कि लेट अस से कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें दो एंगल्स हमारे पास पता है, तो और हमारे पास एक कंडीशन भी है कि ट्राइंगल की कंडीशन यही रहती है कि द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180. सो तीसरा एंगल आप कैसे फाइंड करोगे? 180 माइनस द सम ऑफ द अदर टू. तो ये हो गया कंडीशनड क्वांटिटी. तो हमने जो तीसरा ऑब्जर्वेशन फाइंड किया वो क्या हो जाएगा? कंडीशनड क्वांटिटी हो जाएगा. और जिस भी इक्वेशन से आप फाइंड करते हो कंडीशनड क्वांटिटी को, उसको कंडीशनड इक्वेशन बोलते हैं. इसको डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोला जा सकता है. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्वांटिटीज. द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. सो जो भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, जैसे कि आपने एंगल ले लिया, आपने हाइट ले ली, ठीक है, आपने रेड्यूस लेवल ले लिया, तो इन सब की एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है. एंगल्स की सम डिग्री, सम मिनट. फिर डिस्टेंस ले लिया तो डिस्टेंस भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में रहती है. नाउ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं? कि द वन दैट इज मेड डायरेक्टली ऑन द क्वांटिटी विच इज़ टू बी डिटरमाइंड. जैसे कि अगर आपको एंगल फाइंड करना है
तो डायरेक्टली आपने एंगल ही फाइंड कर लिया। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपने डायरेक्टली डिस्टेंस ही फाइंड कर लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोई एक पर्टिकुलर एंगल हम मेजर कर रहे हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अभी इसके वाइस वर्सा में इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट इज इट इज़ द वन इन विच द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज डिड्यूस्ड, मतलब डिडक्टेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ सम रिलेटेड क्वांटिटीज। जैसे कि अगर हम लोग रिपीटिशन मेथड है जिससे हम एंगल्स फाइंड कर रहे हैं दो स्टेशन के बीच में, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक बार एंगल फाइंड करते हैं दैट इज थीटा, देन नेक्स्ट टाइम 2 थीटा, फिर 3 थीटा। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिडक्ट दोज एंगल्स and then we can find out the actual observation, actual value of our angle. So this is called as indirect observation. Then next comes the weight of the observation. Now weight is what? It is just a number which is given to a particular observation, जो indicate करता है कि उसके trustworthiness कितनी है और उसका accuracy कितना है, वो कितनी एक्यूरेसी से किया गया है, कितना ट्रस्टवर्दी है और कितना रिलायबल है, किसके कंपेयर में, बाकी सब क्वांटिटीज़ के कंपेयर में। लाइक लेट अस से कि आपने 5 से 6 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस फाइंड किए हुए, 5 से 6 अलग अलग एंगल्स फाइंड किए हुए, उन सबको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6। नाउ कोई भी एक ऑब्जर्वेशन का वेट आपने लिया 4, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो क्वांटिटी है वो 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा रिलायबल है, 4 गुना ज़्यादा प्रीसाइसली है, 4 टाइम्स मोर ट्रस्टवर्दी है एज कंपेयर टू दैट ऑब्जर्वेशन जिसका वेट 1 है। तो whenever the two quantities or observations are to be assumed equally reliable, मतलब दोनों का equal weight है, तो the observed values are said to be of equal weight or of unit weight. Observations are called weighted when different weights are assigned to them. मतलब आपने अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास 6 क्वांटिटीज़ है और आपने 6 को अलग अलग वेट दिया है, तो 2000 सेट की आपने सबको डिफरेंट वेट्स दिए। अभी ये वेट आर असाइंड टू द ऑब्जर्वेशंस इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब 6 क्वांटिटी होगी तो हो सकता है कि आपके पास 2 क्वांटिटीज़ ऐसी हो कि जिनका वेट सिमिलर भी हो सकता है, सो दैट इज़ नो इशू विद दैट। तो वेट क्या है कि इट इज़ जस्ट अ नंबर, आप जो नंबर दे रहे हो कोई भी एक ऑब्जर्वेशन पे, ये दिखाने के लिए कि वो दूसरों के कंपेयर में कितना प्रीसाइज है और कितना रिलायबल है। देन नेक्स्ट इज अवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। सो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू मीन्स व्हाट? द ऑब्जर्व्ड वैल्यू विच इज it is that value which is obtained when it is corrected for all the known errors. और ट्रू क्वांटिटी क्या हो गई, ट्रू वैल्यू क्या हो गई क्वांटिटी की, कि इट इज़ द क्वांटिटी इन विच इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल द एरर्स। सो ऐसा तो कभी होगा नहीं। सो द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नेवर नोन टू अस। Why? Because we never know the true error. So observed value means what? That whatever the value we have observed, फिर उसमें से हम errors को correct करते हैं, so that is observed value. Whereas true value मतलब क्या, कि जिसमें कोई error है ही नहीं, so this is not possible, but still there will be some examples, so we'll see that later. Then there is the most probable value. Most probable value means what? That is, it is the one which has more chances of being true, and it is deduced from the several measurements. तो इसके ज़्यादा ये क्वांटिटी कैसी होगी, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के। Then next is true error. Now the true error, it is the difference between true value of the quantity and the observed value. But obvious है कि ट्रू एरर कैसा होगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द
true value and the observed value. Then next is our most probable error. Most probable error means what? It is defined as that quantity जिसे हम either will add or subtract from the most probable value, and that fixes the limit within which there is the chance of the true value to be measured quantity must lie. मतलब एरर जो हमने फाइंड किया है दैट इज़ वो या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिलेगी और इसकी रेंज फिक्स हो जाएगी. सो दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल एरर. देन वी हैव रेसिड्यूअल एरर. नाउ रेसिड्यूअल एरर मीन्स व्हाट? इट इज़ द difference between the most probable value of a quantity and the observed value. So it is the just a difference. Then next is the observation equation. And observation equation, that is the relation between observed quantity and its numerical value. मतलब अगर हमने इक्वेशन यूज़ किया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, सो दिस बिकम्स द ऑब्जर्वेशन इक्वेशन, जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हमारी ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज कंडीशन इक्वेशन. अगेन वही, अगर कोई इक्वेशन हमने ये कोई कंडीशन फिक्स करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड एज कंडीशन इक्वेशन. सो इट इज़ द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन several dependent quantities. Okay, the same example we can use, that we have taken the angles in a triangle, and angle A plus angle B plus angle C, that is equals to 180. So this becomes a conditioned equation also. Then next is normal equation. The normal equation, it is the one which is formed by multiplying each equation with some coefficient, whose normal equations are found by adding the equation. Now, as the number of unknown in the normal equations is same as the number of unknowns, we can determine the most probable values. See, हमारे पास बहुत सारे equations होंगे और कोई ना कोई कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके विल फॉर्म वन जनरलाइज्ड इक्वेशन, और उसमें जितने भी अननोन्स होंगे वो नियर अबाउट इक्वल हो गए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़ के. तो इस तरह से इक्वेशन का यूज़ करके हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो एक्सीडेंटल एरर्स में क्या होता है कि दे फॉर्म सम बेसिक लॉ. ओके, सो द वेरी फर्स्ट अमॉन्ग देम इज द लॉ ऑफ एक्सीडेंटल एरर्स, एंड विच एक्चुअली लॉ दे फॉलो. लेट अस सी दैट investigations of the observations of various types, they show that this accidental errors follow a definite law, and that is law of probability. So they follow the law of probability. Now what does this law defines? That the occurrence of errors can be expressed in a form of equation. और ये इक्वेशन हम किस में यूज़ करेंगे? प्रोबेबल वैल्यू को कंप्यूट करने में यूज़ करेंगे. ओके, सो व्हाट डज दिस लॉ एक्चुअली डज? ये लॉ कहता है कि देयर कैन बी एरर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, और ये इक्वेशन की मदद से हम लोग प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ एक्सीडेंटल एरर्स. So what are they? That is, small errors tend to be more frequent. मतलब जो छोटे errors है वो होने की संभावना ज़्यादा है. Small errors tend to be more frequent than the large ones. That is, they are most probable. Next is that the positive and negative errors occur of same size and with equal frequency. That is, they are equally probable.
Then large errors occur infrequently and are impossible. Okay, so large errors occur नहीं होंगे. So then now let us see the probability curve. So this is the probability curve. और इसी के फीचर्स मैंने आपको बताए कि जो स्मॉल एरर्स है वो होने के चांसेस ज़्यादा है. देन इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो उन दोनों के इक्वल चांसेस हैं. ओके, सो दिस इज़ द probability curve and this is the curve in which the accidental errors depend on one side x axis पे size of error है, दूसरे पे number of errors है. So the theory of probability, this describes the features by stating that the relative frequency of the errors of different extents, this can be represented by this curve, that is ये वाले कर्व से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ एरर और प्रोबेबिलिटी कर्व. और दिस कर्व इट इज फॉर्मिंग द बेसिक्स, ये एकदम बेस फॉर्म करता है मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ थियोरी ऑफ एरर्स के. सो दिस इज द बेस. और द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग टू फाइंड द probable error, that can be given as this way: ES equals to plus or minus 0.6745 under root sigma v square upon n minus 1. ये किसी भी एक ऑब्जर्वेशन की ही है, इसीलिए ऊपर लिखा है कि probable error of a single measurement means only for one observation. Okay, and here ES means what? ES means the probable error of single observation, किसी भी एक ही ऑब्जर्वेशन के लिए. V is what? It is the difference between any single observation and the mean of the series. N is the number of observation, मतलब अगर हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन रहे तो N इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. ओके, V क्या है? V डिफरेंस है मीन ऑब्जर्वेशन में और एक कोई भी सिंगल ऑब्जर्वेशन में. देन नेक्स्ट इज अवर प्रोबेबल एरर ऑफ एन एवरेज. अभी हमने सिंगल ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबल एरर कैसा होगा वो हमने देख लिया. ई एस इक्वल्स टू प्लस और माइनस 0.6745 रूट सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1. अभी अगर हमारे पास 8 या 9 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनकी एवरेज का एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो विल use this formula, that is EM equals to root n by n 0.6745 under root sigma v square upon n minus 1, or other words you can say that it is equal to ES upon root n. अभी इसको probable error of mean भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशंस का जो मीन निकल रहा है उसका प्रोबेबल एरर कितना होगा, सो दैट इज EM. नाउ द प्रोबेबल एरर ऑफ सम. अब जब भी हमारे पास मेजरमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे कि दे माइट बी द रिजल्ट ऑफ द सम्स ऑफ डिफरेंट सेवरल ऑब्जर्वेशन. मतलब एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है E1, तो दैट माइट बी द समेशन ऑफ बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस N1, N2, N3. सो N1 प्लस N2 प्लस N3 दैट माइट बी इक्वल टू E1. सिमिलरली N4 प्लस N5 प्लस N6 माइट बी इक्वल टू E2. तो ऐसे केस में क्या करना रहता है कि द प्रोबेबल एरर ऑफ द मेजरमेंट दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द प्रोबेबल एरर ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशंस. तो इसको हम लोग ये वाले फॉर्मूला से मेजर करेंगे. That is under root E1 square plus E2 square plus E3 square up till En square. Then we have the most probable value. Now the most probable value हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसके most probable value means what, कि जिसके चांसेस ट्रू होने के ज़्यादा हैं. Okay, so the most probable value of a quantity is the one which has more chances of being true. So it can be proved from the theory of errors that the most probable value of a quantity
that is equal to the arithmetic mean if the observations are of equal weight. तो अगर सारे ऑब्जर्वेशंस का इक्वल वेट है तो उनकी अरिथमेटिक क्वांटिटी से हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ सेकेंड थिंग इज दैट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज इक्वल टू द वेटेड अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अनइक्वल वेट्स. मतलब अगर ऑब्जर्वेशंस के वेट्स सेम नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसके इक्वल होगा? वेटेड अरिथमेटिक मीन से. नेक्स्ट इज आवर एवरेज एरर. एवरेज एरर इट इज द series of observation of equal weight is defined as the arithmetic mean of separate errors taken all with the same sign, either plus or either minus. So an average error in a series of observation of equal weights की बात हो रही है. फिर आ गया mean square error. So the mean square error it is equal to the square root of arithmetic mean of the स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल एरर्स. मतलब दे माइट बी प्लस और माइनस. सो ये वाले फॉर्मूला से हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अपॉन n दैट इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा v स्क्वायर अपॉन n. सो नाउ लेट अस सी वन स्मॉल एग्जाम्पल टू क्लियर योर आइडिया. सो वी आर हैविंग 8 रीडिंग्स. So how many readings we are having? We are having 8 readings and that were taken with the level under identical conditions. So 8 reading कौन सी हो गई? 2.322, 2.346, 2.352, 2.306, 2.312, 2.300, 2.306 and 2.326. And what we have to find is the probable error of single measurement and the probable error of mean. तो आगे जो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए वैसे ही करना है. सो ये सारे 8 ऑब्जर्वेशंस हो गए. अभी क्या होगा, इनका आप एक मीन फाइंड करोगे, मतलब इन सब का एवरेज. सो इट मीन्स 2.322 प्लस 2.346 प्लस 2.352 प्लस 2.306 प्लस 2.312 plus 2.300 plus 2.306 plus 2.326 and whole divided by 8. So you will get one mean value and that mean value is equal to 2.321. So now आपकी v क्या हो जाएगा? v that would be equal to 2.322 माइनस 2.321 वो हो जाएगा आपका v1. लेट अस सी दिस. सी ये जो है वो सारे रीडिंग्स है, मीन है 2.321. ओके, सो 2.322 माइनस 2.321 दैट बिकम्स 0.001. सिमिलरली 2.346 माइनस 2.321 दैट इज इक्वल टू 0.025. Okay, then 2.352 minus 2.321 that equals to 0.031. So this becomes this entire value becomes v. So ऐसे आपको पहले मीन फाइंड करना है और फिर उनका जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा आपका v की वैल्यू. एंड देन यू हैव टू सिंपली जस्ट स्क्वायर इट एंड देन बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज यू कैन फाइंड द probability of a single observation, that is probable error of single observation, ES, and EM is what? It is the probable error of mean. मतलब सबका क्या होगा. तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, that is plus or minus 0.6745 under root sigma v square upon n minus 1. So this is formula only you are going to use. वही यूज़ किया है. सो वी हैव ऑल्सो सीन वन सम टुडे एंड नेक्स्ट टाइम वी शैल सी सम अदर टॉपिक्स, मे बी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड और laws of weights. So till then, thank you.
Thank you very much, and see you some other time. Thank you.